everyone. Today is 18th of September 2023, day number 260. The secret of your future is hidden in your daily routine. Today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes of time. Thinking एक लेवल तक अच्छी बात होती है, but overthinking is not at all good. When you lose your ego, you win. It really is that simple. Remember, the talking about the thing is not the thing. Doing the thing is the thing. Study full throttle. This is daily quiz. ये question number 1 है. Space internet companies prefer low Earth orbit satellites over geostationary orbit satellites. और इसका रीजन क्या है? तो ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती है, इनकी जो हाइट है वो रिलेटिवली कम है. ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती है जो अर्थ के सरफेस से हमें सेम पॉइंट पर ऑलमोस्ट वहाँ पे स्टेशनरी नज़र आती है. क्या आप बता सकते हो ये दोनों हाइट्स कितनी है, लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? तो जो स्पेस वाला इंटरनेट के थ्रू जो रिले हो रहा है जैसे स्टारलिंक एटसेट्रा, ये लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स हैं. वाई? GOS satellites cannot provide internet to remote areas like LEO satellites. Signal from one GOS does not cover as much area as covered by one LEO satellite. The latency of signal from GOS satellite is much higher than that from LEO satellites, or the latency of signal from low Earth orbit satellites is much higher than that from this geostationary orbit satellites. तो ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है. यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. Ethanol is basically 99.9% pure alcohol that can be blended with petrol. Molasses is the feedstock used by sugar mills to produce ethanol. National Biofuel Coordination Committee, with Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change as its head, is the agency to coordinate the ethanol blending in petrol. अब आप बताइए इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. Section 8(1) of the Representation of the People Act of 1951, which of the following offences can lead to disqualification of an MP? ये disqualification किन सब बेसिस पे हो सकता है according to RPA 1951? अगर undue influence है या personation है at an election, ब्राइबरी है, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स या फिर डिफेमेशन. तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ यू कीप वॉकिंग ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजिप्ट टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, यू आर लाइकली टू टच द कोस्ट ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज एन रूट. तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके नीचे है अफ्रीका और ऊपर है यूरोप. सो ये मेडिटेरेनियन सी की जितनी भी कोस्टल कंट्रीज हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप मेडिटेरेनियन कोस्ट में हैं और आप इजिप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. इजिप्ट मतलब इजिप्ट है अफ्रीका में और एशिया में, सो दिस इज इजिप्ट. इस इजिप्ट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और मेडिटेरेनियन कोस्ट को पूरा कवर करेंगे. सो आपको बताना है आप कितनी कंट्रीज एन रूट आपको मिलेंगी. So this is 4th question. अब ये 5th question है. Which of the following taxes are not subsumed under goods and services tax? Anti-dumping duty, professional tax, service tax, entertainment tax, property tax levied by local bodies. So these are 5 questions for today. आप इन सब के answers comment section down below try to answer. दिस इज टेलीग्राम क्विज. सिमिलरली 5 MCQs हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डेली बेसिस पे गेम फॉर्मेट में प्ले करते हैं. ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. ये जो न्यूज़पेपर की PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अलॉन्ग विद सो मेनी अदर नोट्स, PDFs एटसेट्रा आपको मिल जाएंगे. सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. दिस इज इंग्लिश. 5 alternatives to be happy. Happy people are more successful. Try to be happy and success will follow you. 5 alternatives to happy. Happy को हम बोल सकते हैं delighted. Delighted को sentence formation में यूज हो सकता है like we are delighted to tell you that your application has been successful. Over the moon, Chandrayaan 3. I was over the moon when I passed my driving test. मतलब happiness. Ecstatic मतलब we never thought we would win. We are ecstatic. Stoked है मतलब I have got tickets to see Rihanna and I am stoked, happy. Thrilled है you are engaged, I am thrilled. So these are 5
वर्ड्स, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स टू हैप्पी, और ये इनके सेंटेंस फॉर्मेशन है। दिस इज सी सेट। अब देखिए इसका आंसर बताइए। ये 126 है, फिर 64 है, फिर 34 है, फिर 20 है, फिर 14 है। 126, 64, 34, 20, 44। What will be the next term of the series? Answer 12, 10, 9 और 8 आंसर। ओके, सो ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है। दिस इज अ फैंटास्टिक कोर्स। इसकी वन टाइम फी है केवल 5555। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। सो द पॉइंट इज कि इस एक कोर्स में प्रीलिम्स की जो तैयारी है हम बहुत इंटीग्रेटेड मैनर में कर रहे हैं। कोर सब्जेक्ट सारे कवर होंगे, करंट अफेयर्स सारा होगा, एमसीक्यू होगा, सी सेट होगा, मेंटोरशिप होगी, रीडिंग राइटिंग होगी और पर्सनालिटी पे भी हम ध्यान देंगे। द आइडिया इज नॉट ओनली टू क्वालिफाई प्रीलिम्स बट ऑल्सो प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू। सो ये तीनों एरियाज जो हैं वो इस कोर्स में बहुत सिस्टमैटिकली कवर हो रहे हैं डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, visit this website srajanindia.one. Okay, if you have any query you can WhatsApp me. Again the WhatsApp chat is enabled on this website srajanindia.one. अभी हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए हैं 2 महीने के टाइम पे। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होगी और सितंबर में सी सेट भी हमें कंप्लीट करना है और अक्टूबर से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। सी द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज फ्यू ईयर्स बैक, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। आज भी 9 महीने करीब बचे हुए हैं। अगर आप आज से भी तैयारी चालू करोगे आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस 26 मई 2024 के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट। ये जो स्टार्ट है हमें शो अप होना है और जो रेजिस्टेंस है इसको ओवरकम करना है। ऑलवेज रिमेंबर, गुड शुड बी aggressive. A stitch in time saves 9. So be good. Be good should be aggressive. This is social media. Pledge for organ donation है। अब देखिए ऑर्गन डोनेशन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एनकरेज कर रही है। ऑर्गन डोनेशन से बहुत सारी लाइव्स हम सेव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, जैसे कोई डाइंग पर्सन है या डेड है तो उसके ऑर्गन से किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को एक जीवन दान मिल सकता है। हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, पैनक्रियाज, ये ऑर्गन्स डोनेट होते हैं। साथ ही साथ टिश्यूज भी डोनेट होते हैं। कॉर्निया, बोन, स्किन, टेंडन्स, हार्ट वॉल्व्स। आप बताओ कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये है जादो पटिया चित्रकला निम्न में से किन राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या फिर कर्नाटका। मूंज हस्तकला है। मूंज ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक अनूठी हस्तकला शैली है। मूंज एक जंगली घास है। इस घास को सर्दी के मौसम में काटा जाता है और इसके छिलकों को कुछ दिन तक ओस में छोड़ने के बाद विविध प्रकार के उत्पादों को बनाया जाता है। सो दिस इज ओस और ये है मूंज जंगली घास, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सी सो मेनी फैंटास्टिक यहाँ पर क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मूंज। देन दिस इज सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? आदित्य, निशाकर, शशि। आंसर दिल्ली दूरदर्शन। दिल्ली दूरदर्शन के 64 साल हो गए हैं। 64 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ दूरदर्शन। सी दूरदर्शन बहुत ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीडिया आउटलेट है। मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली दूरदर्शन क्या थे? एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन 1959 में स्टार्ट हुआ। स्कूल टेलीविजन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1961 में। 1965 में रेगुलर सर्विस हिंदी न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट हुआ। कृषि दर्शन 1967 में फॉर फार्मर्स। देन ऑल इंडिया रेडियो 1976 में दिल्ली दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को सेपरेट किया गया। 1995 में डीडी इंडिया लॉन्च हुआ। प्रसार भारती 97 में और डीडी स्पोर्ट्स हुआ 1999 में और फिर डीडी न्यूज़ एक करंट अफेयर्स चैनल के थ्रू डेवलप हुआ। सो दिस इज सरकारी दिल्ली दूरदर्शन। हम बात करते हैं ई कोर्ट्स के प्रोजेक्ट के। तो ई कोर्ट्स हम एनकरेज कर रहे हैं सो दैट जो जुडिशरी है इसमें स्पीड आए, एफिशिएंसी आए और एक हद तक ट्रांसपेरेंसी भी आए। अ जायंट लीप टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजिंग जुडिशरी। तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे S3WAAS प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेशन विद ICJS है, ई ऑफिस है, नॉलेज मैनेजमेंट है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसके अलावा इसमें पेपरलेस कोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सोलर पावर बैकअप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई फाइलिंग है, कनेक्टिविटी प्राइमरी और रिडंडेंसी है,
हम स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन, डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ केस रिकॉर्ड्स होंगे। आपको पता है बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो सेम फॉर्मेट के रहते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, हम बहुत सारे जो एक ही टाइप के केसेस हैं, जैसे ट्रैफिक चालान हो गया या सिमिलर टाइप ऑफ केसेस, इनको विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हम अगर सॉल्व करेंगे तो जुडिशरी का जो वर्कलोड है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ऐसे एआई और दिस डिजिटल टूल्स को भी जुडिशरी अब इनकॉर्पोरेट कर रही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडिशनल हार्डवेयर है, आईसीटी है, वर्चुअल कोर्ट्स है, ई सेवा केंद्र है। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं दिस हमारी कोर्ट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए। दूरदर्शन का लोगो क्या है? दिस दूरदर्शन का ये लोगो है और टैगलाइन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। इसका मतलब आप बता सकते हो? सत्यम शिवम सुंदरम। डीडी एक ऑटोनॉमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था। टेलीविजन, ऑनलाइन, मोबाइल सर्विसेज ये इंडिया और ओवरसीज प्रोवाइड कराता है। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं जिनको अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में इंक्लूड किया गया है। उनके नाम है कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैकस्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ, गोल्डस्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर जिसमें शू स्मिथ, फुटवेयर आर्टिसंस भी आएंगे, मैसन, राजमिस्त्री, बास्केट, मैट, ब्रूम मेकर, कॉय वीवर, डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर एंड फिशिंग नेट मेकर, ये सब ट्रेडिशनल ट्रेड्स में इंक्लूड होते हैं। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। सो अवर आइडिया इस 1 आवर ऑफ टाइम पे, एवरी डे 1 आवर ऑफ टाइम पे हमें ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर एग्जामिनेशन विद इन द सिलेबस हमें कवर करना है। हम एमसीक्यू भी देखेंगे, न्यूज़पेपर भी देखेंगे, सोशल मीडिया अपडेट भी देखेंगे, अंग्रेजी भी देखेंगे और आंसर राइटिंग भी करेंगे एंड सी सेट भी करेंगे, और जनरल जो डूज एंड डोंट्स एंड अदर थिंग्स रिक्वायर्ड एज एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये लाइव सेशन होता है तो वी हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी जिसमें हम अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन भी करेंगे। सो दिस इज द हिंदू, मंडे September 18th 2023। सेंटर प्लान्स टू रिकॉल RAF फ्रॉम मणिपुर। तो रैपिड एक्शन फोर्स है, ये एक स्पेशलाइज्ड एंटी राइट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। अभी मणिपुर में वायलेंस था, RAF वहां पे डिप्लॉय थी, अभी RAF को वहां से विड्रॉ करने की बात है। तो 10 कंपनी RAF की यहाँ पे थी जिनको अभी विड्रॉ करने का गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। RAF यूनिट था, इस पे अभी अटैक भी हुए थे। RAF यूनिट का प्राइमरली पर्पस होता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करे। सो दिस इज अगेन अभी सेंटर का ये डिसीजन है। न्यू पार्लियामेंट टू होस्ट सेशन फ्रॉम टुमारो। सो हमारी नई पार्लियामेंट बन गई है और उसका फर्स्ट सेशन नई बिल्डिंग में कल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल सेशन होगा, ये ओल्ड बिल्डिंग नहीं, स्पेशल जो सेशन होगा ओल्ड बिल्डिंग में होगा विद MPs मूविंग टू द न्यू बिल्डिंग ऑन द सेकेंड। तो दिस इज लाइक ट्रांजिशन, ओल्ड संसद भवन से हम नए संसद भवन में ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे बिल्स भी आने वाले हैं, लेट अस सी टुमारो। पहले दिन ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे, फोटो सेशन होगा, देन फिर हम नए पार्लियामेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ बिल्स हैं जैसे इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल है। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे भी यहाँ पे डिस्कशन कर सकती है। सो लेट अस वेट एंड वॉच। ये कल हमारी नई पार्लियामेंट में एक नई शुरुआत होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे लॉन्च किया विश्वकर्मा स्कीम, 13,000 करोड़ की है, 13,000 करोड़ की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे बहुत सारे सवाल आएंगे, प्रीलिम्स मेंस सब जगह। 18 जो इसमें आर्टिसंस को इंक्लूड किया गया है, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणपति बप्पा मोरिया, विनायका चतुर्थी है, तो कल द हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आएगा, हम भी ऑफ लेंगे कल। और कल में बहुत सारी जो बैकग्राउंड वर्क है, गैजेट्स अपग्रेड है, ऐसे करके सारी चीजें कल आई विल ट्राई टू फिक्स। दिस इज फाइन पिकिंग्स, पॉपुलर डेलिकेसी है। विलेजर्स कलेक्ट कर रहे हैं टेंडर बैम्बू के शूट्स, और ये असम का कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है। वर्ल्ड बैम्बू डे था संडे को। तो बैम्बू ग्रास होता है या ट्री होता है? आंसर। और बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फूड में भी इस्तेमाल होता है, वेरियस अदर आर्ट क्राफ्ट्स में होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में होता है। सो दिस इज बैम्बू। गवर्नमेंट बैम्बू को बहुत एनकरेज कर रही है, बांस, क्योंकि बांस से एक बहुत अच्छा लाइवलीहुड हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आप ये भी बताओ बैम्बू क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या नहीं?
ऑपरेशन टू फ्लश आउट मिलिटेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंटर्स फिफ्थ डे। सी, टेररिज्म के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। ऑपरेशन टू फ्लश आउट मिलिटेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंटर्स फिफ्थ डे। शांति निकेतन इज नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पार्लियामेंट्री कंडक्ट इन नीड ऑफ अ न्यू चैप्टर। तो सी, नई पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो पार्लियामेंटेरियंस को भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है, बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका भी करेक्ट रिस्पॉन्स वहां पर कंडक्ट अप्रिशिएबल होना चाहिए। सो ये हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज द नेक्स्ट वन, एजुकेशन प्लस। बड़ा अच्छा आर्टिकल अगेन है, स्किल बेस्ड लर्निंग फैसिलिटेट्स एक्सप्लोरेशन। हमें पढ़ाई कैसे करानी चाहिए, इस बात पे सवाल है। पढ़ाई करते हैं केवल एक एग्जाम के लिए, केवल एक डिग्री के लिए, तो इससे जो एक्चुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो डिफीट हो जाता है। हमें एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं, एनकरेजमेंट करें इंडिविजुअल्स को, सॉल्यूशन फाइंड करो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है उसको बढ़ाओ। तो द पॉइंट इज, दिस इज द पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। ये ऐसे टाइप लिखा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम के कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको रेगुलर पैटर्न में मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। तो जनरली स्पीकिंग, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स टुगेदर पर्सनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंस टू अक्वायर, एनरिच और मॉडिफाई वंस नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वर्ल्ड व्यूज। देखो कितनी बढ़िया डेफिनेशन दी है यूनेस्को की कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब 4 किताबें पढ़ना, 2 एग्जाम क्वालिफाई करना, इसको शिक्षित होना नहीं बोलते हैं। शिक्षा का मतलब होता है कि आप में बदलाव आ रहा है, आप में सुधार आ रहा है, आपकी नॉलेज बेहतर है, आप में स्किल सेट है, आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका बिहेवियर कॉर्डियल है, आपका जो नजरिया है दुनिया को देखने का, वर्ल्ड को देखने का, ये भी informed है, it is not out of bias or this is not a stereotypical attitude. So this is what it is called education. तो द पॉइंट इज, द मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड द थ्योरीज ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स हमारा बिहेवियर कैसा है। सी, बिहेवियरल चेंज भी होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, GS4 का पूरा पेपर पढ़ रहे हैं हम, तो हमारे बिहेवियर में भी चेंज आना चाहिए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस, सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी एंड कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। वी डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी लिव इन अ कम्युनिटी। तो लाइफ स्किल्स जो होती है ये जरूरी है, हम टॉपिक्स को इन्वेस्टिगेट करें, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज को पढ़ें, रोट लर्निंग नहीं करें। हम रोट लर्निंग नहीं करें, हम चीज़ों को समझें। स्किल बेस्ड लर्निंग हो, एक्सप्लोरेशन, हम एनकरेज करें इंडिविजुअल्स टू बिकम सॉल्यूशन सीकर। हम सॉल्यूशन फाइंड, प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है प्रॉब्लम्स है, बट द पॉइंट इज, क्या हम बस कंप्लेन करते रहते हैं या हम एक्चुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंप्लेन कम करना है, सॉल्यूशन ज्यादा फाइंड करना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन सीकर हो, हम इंडिविजुअल्स सेंटर ऑफ नॉलेज एक्विजिशन में हो। नॉलेज इज समथिंग, जितना हम शेयर करते हैं उतना ही नॉलेज बढ़ती है। एंड नॉलेज इज नॉट समथिंग कि कभी भी ग्लास फुल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो इम्प्रूव। तो ये चीज हमने यहाँ पे वेरियस जो थ्योरी एंड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बताया। अब देखिए, एक और चीज होती है कि क्या डिग्निटी ऑफ लेबर, रेस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड नेचर, क्यूरियोसिटी, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, इमोशनल इक्वानिमिटी, emotional intelligence, psychological strength, physical and physiological fitness, social adeptness, intellectual depth, मेंटल शार्पनेस, रिगर एंड डिसिप्लिन, क्या हम इन एरियाज में वर्क कर रहे हैं? आप सिविल सर्वेंट भी बन जाते हैं, बट इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, आप अदर्स का रेस्पेक्ट और जो बेसिक डिग्निटी एंड मैनरिज्म में फॉलो नहीं कर रहे, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ होल्डिंग दैट पोस्ट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्वायरिंग सो मच ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग? सो ये जो वैल्यू सिस्टम है ये भी शिक्षा में इंक्लूड कराना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग मैनिफेस्टेशन जो है ये है एथिकल वैल्यूज का। जैसे बिजनेस में भी सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इवेंट समझना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, ग्रेटफुलनेस होना भी जरूरी है। हम एट टाइम्स थैंकलेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड दिखाते नहीं है। वी शुड शो ग्रैटिट्यूड फॉर एवर। नेचर हमें इतना दे रही है सब कुछ, वी शुड नॉट टेक नेचर फॉर ग्रांटेड, वी शुड बी ग्रेटफुल।
So grateful for and focusing on the resources and circumstances that are in one's favor rather than focusing on unfavorable factors. कई बार एज अ स्टूडेंट भी हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. वी फॉरगेट कि हमारे पास कितने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी है, कितनी सारी चीजें हमारे फेवर में जा रही है. सो वी डू नॉट फोकस द गुड थिंग, वी ओनली क्रिब अबाउट द लेसर थिंग्स. तो दिस इज अगेन नॉट अ गुड एटीट्यूड. तो ये सारी चीजें जरूरी होती है हमें. तो ट्रांसफरेबल नॉलेज क्या होता है? जो ट्रांसफर होता है, से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, टीचर्स टू स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफरेबल नॉलेज है. तो ये एक्सपीरियंस है दैट इंडिविजुअल, स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स गेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन. हम सीखते हैं एजुकेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, टेक्निकल नो हाउ से. तो धीरे धीरे जैसे हमें एक्सपीरियंस आता है, वी गेट टू नो थिंग्स बेटर. Transferable knowledge appreciate usability and importance of transdisciplinary studies and experience. देखिए, the wisdom lies in learning the experiences of others. So learning of a toddler acquires from playing a team game. अगर हम टीम गेम देखते हैं तो हमें टीम में प्ले करना, सर्वाइव करना आता है, टीम स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होती है, टीम स्पिरिट आती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो द पॉइंट इज, जैसे गेम्स हुए, एक्टिविटीज हुई, ये सब चीजें टीम बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. चिल्ड्रन और एडोलेसेंट टुडे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. टेक्नोलॉजी है, लेबर मार्केट में चेंजेस है, माइग्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं. तो ये भी लर्निंग आउटकम को इम्पैक्ट करते हैं. हमें ज़रूरत है कि हम नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, वैल्यूज़ को इम्पार्ट करें और उनको हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाएं. लाइफ लॉन्ग लर्नर्स क्या होते हैं? द अगेन थिंग, दे नो कि देर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी उनको नहीं आती. जैसा हम अक्सर बोलते हैं ना, जितनी ज़्यादा जिस पर्सन में नॉलेज होती है, वो उतना ही जानता है कि उसको कितनी नॉलेज नहीं है. सो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, हु कैन लर्न एंड अनलर्न. समय के साथ चीज़ें बदलती है, आपको सीखना है, फिर उसको अनलर्न भी करना है और फिर रीलर्न भी करना है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से. फाइंड एंड रिटेन प्रोडक्टिव वर्क, मेक वाइज डिसीजन, पॉजिटिवली एंगेज इन देयर कम्युनिटीज. सो यूनिसेफ बहुत एक्सीलेंट वर्क करता है एजुकेशन और इन फील्ड में, और ये बहुत ही वेल थॉट आर्टिकल है. इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा है और ऐसे राइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है. सो यहाँ डेटा दिया हुआ है कि किस तरह एजुकेशन में हो रहा है. जैसे विमेन का एजुकेशन एट टाइम्स रिलेटिवली कम रहता है परसेंटेज में, विच इज़ नॉट गुड. प्लस एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी होना चाहिए. होम लर्निंग, लिटरेसी, लाइफ स्किल्स सिखाना भी ज़रूरी है. किताबों के बाहर भी दुनिया होती है, तो वो दुनिया की जानकारी भी हमें होना चाहिए. तो द पॉइंट इज, होलिस्टिक एंड 360 डिग्री डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. ये जो लर्निंग है, ये मैंडेटेड हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपलसरी रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो, प्लस कम्युनिटी वर्क भी कराओ, ताकि एक सेंस ऑफ सर्विस बच्चों में डेवलप हो. कि ऐसा नहीं है कि हमें केवल टेक टेक टेक, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. तो इंटर्नशिप हो, कम्युनिटी हो, स्कूल कॉलेजेस में, ये सब चीजें 360 डिग्री लर्निंग डेवलप करेगी. ब्यूटीफुल आर्टिकल, इसको आप एक बार फिर से पढ़िएगा. देन ये है टेस्टिंग टाइम्स, इसमें रेगुलर टॉक है. अगस्त का फॉरेन ट्रेड जो नंबर है वो वरिज्म है. फॉरेन ट्रेड हमारा डिक्लाइन हुआ है. ट्रेड डिक्लाइन हुआ मतलब एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, नॉट अ गुड थिंग. सो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आता है. डॉलर्स नहीं आएंगे अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और इम्पोर्ट बिल तो बढ़ रहा है हमारा. सो दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी. तो अभी इंडियन जो एक्सपोर्ट है, इस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है. जो एक्सपोर्ट कम हुआ, इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं. एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्ल्ड में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, और वर्ल्ड थोड़ा अभी डिक्लाइन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दिस बिजनेस सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ से कोविड-19 या फिर रशियन क्राइसिस एट्सेट्रा. सो डिमांड नहीं आ रही है. हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव है, बट यूरोप, स्पेशली अमेरिका एंड यूरोप से डिमांड नहीं आ रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट लैग हो रहा है. ओके. सैंक्शंस फॉर चेंज, यूएस पॉलिसी मेकर ने अभी जो ईरान को अभी थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया है, क्योंकि ईरान के साथ ट्रेडिशनली यूएस के फॉर पास्ट फ्यू डेकेड्स चैलेंजेस रहे हैं. एक ईरान डील भी हुआ था, P5+1 वाला डील. बट द पॉइंट इज कि अभी जो बाइडेन टेन्योर के बाद जो रिलेशंस हैं उसमें थोड़ी नॉर्मलसी की बात है. अभी काफ़ी सारे सैंक्शंस ईरान पे लिफ्ट किए जा रहे हैं. ये ध्यान रखना है कि कंट्रीज हैं ईरान, कंट्री है चाइना, कंट्री है नॉर्थ कोरिया, कंट्री है रशिया. इन सब के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ रही है, कोऑपरेशन बढ़ रहा है. दिस इज अ न्यू एक्सेस डेवलप हो रहा है.
ईरान और रशिया ट्रेडिशनली फ्रेंडशिप रही है। अभी ईरान के जो ड्रोन्स हैं, ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं और सपोर्ट है, रशिया ने इसको यूज किया था यूक्रेन में भी। देन ईरान और चाइना का दिस क्लोजनेस बढ़ रहा है। चाइना चाहबार पोर्ट में भी काफी एक्टिव हो गया है। चाइना और ईरान दोनों यहाँ पर क्लोजर टाइज की तरफ है। चाइना नॉर्थ कोरिया तो ट्रेडिशनली फ्रेंड्स रहे ही है। नॉर्थ कोरिया और रशिया भी क्लोजनेस बढ़ रही है। अभी व्लादिवोस्टॉक में नॉर्थ कोरिया प्रीमियर मेट विद मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, और अभी व्लादिमीर पुतिन भी नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं, वैसे तो इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, बट एक सिमिलैरिटी है, वो है यूएसए की कॉमन सैंक्शंस। यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगाया, रशिया पे लगाया, चाइना से ट्रेड वॉर है, नॉर्थ कोरिया पे लगाया। सो दीज ऑल 4 कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर। क्राफ्टिंग अ न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री कंडक्ट, एक नॉर्मल टॉक है। इसमें शशि थरूर साहब ने लिखा है कि क्यों जरूरी है कि जब आप टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में हैं, तो उस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी की गरिमा और जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी नई पार्लियामेंट में जाएंगे, तो जरूरी है कि हम एक नई शुरुआत करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंडक्ट और हमारे वर्क और हमारे बिहेवियर में नजर आए। सो अभी सेशन स्टार्ट होगा, वरना डिसरप्शन बहुत होता है और एट टाइम्स सेशंस कैंसिल हो जाते हैं, बिल्स बिना डिस्कस के पास हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री विजडम उभर के नहीं आती है, जो पार्लियामेंट्री चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है वो नहीं इंश्योर होती है, कमिटीज अपना वर्क टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाती, और द पॉइंट इज ओपोजिशन एट टाइम्स इतना वीक हो जाता है कि वो क्वेश्चंस रेज नहीं कर पाता, सवाल नहीं पूछ पाता। सो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के लिए करेक्ट नहीं है। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ये ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है उससे इंस्पायर्ड है, बजाय प्रेसिडेंट वाला रूल जो यूएसए में चलता है। तो जैसे मेंस में भी सवाल आया था कि इंडिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या कंपैरिजन ड्रॉ करिए, इससे पहले इंडिया और यूएसए में कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आया था। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जैसे सोवरेन है, बट इंडिया की पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, और इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दिस इज देयर। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल एज इट इज नहीं है, ऑल्दो जैसे वेस्टमिंस्टर मॉडल में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स लेजिस्लेचर ये कुछ ज्यादा होती है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कुछ ब्रिटिश प्रैक्टिसेस जैसे लाइक फेड हो रही है। कई बार हम देखते हैं राउडी बिहेवियर होता है, फर्नीचर्स माइक्रोफोन्स तोड़ फोड़ हो रहा है, विच इज नॉट ओके। और फिर इसके बाद रूटीनली ब्रीच होता है, कंडक्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता, ओपोजिशन वीक हो जाती है, ओपोजिशन सही सवाल नहीं पूछती है। सो इन सब चीज़ों से जो पार्लियामेंट है उसका एक रॉन्ग इमेज भी सेट होता है, और जो पार्लियामेंट एक जो पायस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है ये उसमें एक सेटबैक नजर आता है। सो द आइडिया इज की नई शुरुआत है, नए वैल्यू सिस्टम के साथ हम आगे बढ़े। ये आर्टिकल है फाउंडर एंड चेयरमैन अपोलो का, डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी साहब। इंडिया इज अ पाइवटल मोमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। इंडिया का हेल्थ केयर इज रिलेटिवली बेटर। इंडिया का हेल्थ केयर चीपर भी है, अफोर्डेबल भी है और इफेक्टिव भी है। एक हेल्थ केयर का टूरिज्म होता है, बहुत सारे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। तो दिस इज मेडिकल टूरिज्म। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसमें अभी मून पे भी हम पहुंचे, साउथ पोल में फर्स्ट अटेम्प्ट में। G20 की प्रेसिडेंसी हुई। सो द पॉइंट इज ग्लोबल बहुत अच्छी पोजीशन पे है आज की डेट में। इंडिया के स्टार्स आर अलाइन। एनसीडी फ्री इंडिया टू अवॉइड एज टैक्स। एज टैक्स क्या होता है? जब हम एज होता है तो हमारी बॉडी भी वीक होती है और फिर हमें मेडिकल हेल्थ केयर की जरूरत ज्यादा होती है। सो दैट इज वाई एल्डरली को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन भी देखें, एनर्जी पैशन एम्बिशन ऑफ यूथ है। देन इसके बाद हम देखें तो एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्दो हम गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जैसे आयुष्मान भारत है, सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करते हैं, वी ट्राई टू प्रोवाइड देम मेडिकल हेल्थ केयर। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा बढ़ रही है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है, ये सब चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है उसमें भी टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इन पर्टिकुलर अपोलो हॉस्पिटल के यहाँ पे इनिशिएटिव्स यहाँ पे मेंशन किए। मेडिकल वैल्यू, अब जैसे देखिए हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये फास्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल हो रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो इंडिया एक मेडिकल हब बन रहा है। मेडिकल में भी एआई
टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी की हेल्प से जैसे रोबोटिक सर्जरी हो रही है, बायोमार्कर्स हैं, हम जीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, R&D हो रहा है। इससे इंडिया का मेडिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सही डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है। सो AI ड्रिवन हेल्थ केयर है, जैसे बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज है, वो डेली आपका बॉडी डेटा मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे पल्स मॉनिटर कर रहे हैं, BP मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तो बहुत फैंसी हो गई है स्मार्ट वॉचेस। सो विद द हेल्प ऑफ AI डेटा कलेक्शन, डे टू डे वैल्यूज वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत सारी डिसीजेस को प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे स्लीप डिप्राइव्ड है, a student is not sleeping for say 6 hours on daily basis, so there is a possibility कि उसकी आफ्टर 15 days, 20 days, 30 days हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, बिकॉज उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, स्लीप प्रॉपर हो नहीं रही है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी भी हम ये चीज़ देख रहे हैं। हेल्थ केयर डेटा, हेल्थ केयर प्रोसीजर ज़रूरी है, AI ड्रिवन एक्सपेंडिचर। सो द होल आइडिया इज कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। असेसिंग आउटकम ऑफ G20 समिट, ये राजीव भाटिया साहब ने लिखा है। G20 समिट अभी कंप्लीट हुआ, इसका हमने आंसर राइटिंग भी किया था। G20 की बहुत सारी हाइलाइट्स थी। पहली हाइलाइट तो ये था, इसका एक बहुत अच्छा PDF है जो टेलीग्राम पे मैंने एक शेयर किया था, उसको एक बार देखिएगा। बहुत कंसोलिडेटेड और सिंगल PDF है। देखो, मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप लोग आज जिस एज में रह रहे हो ना, यहाँ नोट्स की कमी नहीं है। यहाँ पे नोट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा का ओवरबर्डन है और इतनी चीजें हमें नहीं चाहिए। हम 10 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं करना है ऐसा। आप इतना हैंडल ही नहीं कर पाओगे। आप एक चीज पढ़ो, रोज पढ़ो और उसको नोट टेकिंग करके प्रॉपर डाइजेस्ट करो, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो सिमिलरली जैसे G20 का जो मैंने PDF शेयर किया था, वो ऑफिशियल डेटा है। रीड दैट डेटा, मोर देन सफिशिएंट। तो एक ही जगह रखें और उसको बार बार पढ़ें, तो इससे कॉन्फिडेंस होता है। अगर हम बहुत ज्यादा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं तो इससे एंट्रोपी होती है और स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है, मटेरियल स्टडी, मटेरियल कलेक्शन वाला ट्रैप। एट टाइम स्टूडेंट्स में हैबिट हो जाती है, वो बस PDF कलेक्ट करते रहते हैं, यहाँ से ये अच्छा PDF हो गया, दिस हो गया, दिस हो गया, या फिर वो बस वीडियोस देखते रहते हैं, एनालिसिस वीडियो, ये ऐसा होना था, वैसा होना था। अभी मेंस कवर हुआ, अब 10-10, 20-20 घंटे वीडियोस देख रहे हो, मेंस का सवाल, एनालिसिस, दिस एंड दैट। इसके बजाय 3 घंटे आप लिख के बताओ। यू आर मोर देन सफिशिएंट, आपको सब आता है, बस आप 3 घंटे अपनी जितना भी पढ़ा है उसको लिख के बताओ। बॉटल नेक यहाँ पे आएगा। ट्राई टू डू दिस। आज 2 बजे लिख के बताइएगा GS3 का क्वेश्चन पेपर। तो द पॉइंट इज, हमें ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है। अब इस बात करें G20 का, तो इसमें क्या हुआ, कॉमन हमने स्टेटमेंट रिलीज किया, गुड। अफ्रीकन यूनियन अब G21 हो गया है, विच इज गुड। वर्ल्ड में काफी अच्छा इंडिया का जो प्रेजेंटेशन था वो अप्रिशिएट किया गया। G20 बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया, एवरीबडी वाज अवेयर और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इनिशिएटिव्स वगैरह में। सो दिस वाज रियली गुड। प्रियम्बल, कंक्लूजन और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मतलब यूनिटी पे हमने फोकस किया, हार्मनी पे फोकस किया, इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हमने फुल्ली कमिटेड हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमने बात किया। हमने डेट वल्नरेबिलिटी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिफॉर्म्स और पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल साउथ भी रखा G20 में। इसके अलावा हमने जियोपॉलिटिकल इश्यूज उठाए। G7 टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करें। अफ्रीकन यूनियन अब G20 का मेंबर बन गया है, तो G20 में 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। तो ये बन के अब हो गया G21 और नेक्स्ट मीटिंग होगी ब्राजील में, ये इंडिया में थी और पिछली हुई थी इंडोनेशिया में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं हम, फाइनेंशियल सेक्टर, क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन में आगे बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आगे बढ़ रहे हैं, विमेन पार्टिसिपेशन हम आगे बढ़ा रहे हैं। दीज वर रियली रियली द हाइलाइट्स। हम री इन्विगोरेट कर रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म को। वर्ल्ड ना तो यूनिपोलर है ना बायपोलर है, वर्ल्ड अब बहुत सारे मल्टीपल स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। सो टुगेदरनेस पे हम फोकस कर रहे हैं, वननेस पे हम फोकस कर रहे हैं, वननेस पे, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इन जनरल भी इन टेम्पलेट्स को आप बहुत सारे अदर क्वेश्चंस पे भी यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बैन्स एंड स्टॉकिंग लिमिट्स, आर दे वर्किंग? पॉलिसी वॉच है। देन नंबर ऑफ ओवर्स, श्रीलंका कल इंडिया जीत गया। देन दिस इज ओडिशा सुंदरगढ़ एंड दिस इज आंगनवाड़ी, FPIs एंड लिबिया।
प्रोजेक्ट चीता अ ईयर ऑन, 1 साल हो गए हैं चीता नामीबिया अफ्रीका से इंडिया में लाए हुए, अभी इसका असेसमेंट चल रहा है। तो चीता ओवरऑल डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था बिकॉज चीता एज अ कैट स्पीशीज, जो चीता होता है इसकी सर्वाइवेबिलिटी कम रहती है, ये इतनी रोबुस्ट नहीं होती इन कंपैरिजन टू टाइगर एंड लायंस। तो द पॉइंट इज ये डिफिकल्ट था बट ये जरूरी था बिकॉज इंडिया में चीता था वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया, हमने वापस चीता को रीइंट्रोड्यूस किया इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आए एप्लीकेशन में, जैसे चीता की डेथ हुई तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा। बाद में ये भी आया कि क्या हमें गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादही जो है यहाँ पर भी चीता को इंट्रोड्यूस करें लाइक दैट, ये सब बातें अभी पैरेलल में चल रही है। रेडियो कॉलर लगाया गया तो रेडियो कॉलर से डिसीजेस तो नहीं हो गई, इस पे सवाल उठा। फिर ये भी आया कि चीता बिकॉज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आया है तो वो हैबिचुअल नहीं हो पाया इंडियन क्लाइमेट में, जो रिलेटिवली समर सीजन आया, इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स, तो दैट इज वाई उनकी डेथ हुई। फिर अगेन ये बात हुआ कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था। सो इंडियन मॉनसून अगेन जो डिफिकल्टी आया, तो देर वर सम लाइक कैजुअलिटीज चीता का हुआ है, बट हम ऑप्टिमिस्टिक है, हम ये मान के चल रहे थे कि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहती है, चीता में वैसे भी ज़्यादा रहती है, 15% एडल्ट एंड 50-60-70% ऑफ कब्स की मोर्टेलिटी रहती है, बट वी आर होपफुल कि ये अभी स्टेबलाइज होगा। एक और बात है कि हमें और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और एशियाटिक लायंस का भी हमें ट्रांसलोकेशन करना है। गिर में बहुत ज़्यादा इन ब्रीडिंग हो रहा है और दे आर लाइक ससेप्टेबल हैं, ऑल द इंडियन लायंस आर concentrated at just one place, so this is not technically okay। so हमें गिर लायंस को भी स्प्रेड आउट करना है, एशियाटिक लायंस, तो एक बैलेंस बनाना जरूरी होगा इन टोटलिटी इकोसिस्टम को, और लेसन से सबक सीखना चाहिए, वर्क करना चाहिए। जो वर्क करते हैं वही गलती करते हैं, बट जो सक्सेसफुल होते हैं वो उन गलतियों से जल्दी सीखते हैं, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। Why is the government pushing for regulatory mechanism for OTT services? OTT services के साथ प्रॉब्लम है एट टाइम्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे या तो सेक्सुअल न्यूडिटी या फिर कंट्रोवर्शियल या फिर डिविजिव ऐसे कंटेंट भी आ रहे हैं जो गैर जिम्मेदार है। सो गवर्नमेंट दैट इज वाई यहाँ पे रेगुलेशन करना चाहती है। लेट्स हैव अ मैटर व्हाइल आई मेक सम टी। ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर। फर्स्ट यू टेल मी हाउ नेटर इज प्रोनाउंस्ड। तो इट इज लाइक जनरल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे with someone, conversation with the individual, okay, doesn't really have a purpose, just बातें कर रहे हैं वहाँ पे। The boss had a natter with Suchitra, okay, so this is natter, and then this is English, okay, the reception is really bad right now, that certainly sounds a lot better। then this is wherewithal, इसका मतलब है necessary means, means substance क्या है, financial means है या नहीं है। ये MCQs है, quiz है, daily quiz है। कॉमिटेड टू हेल्पिंग आर्टिसंस, 13,000 करोड़ की ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। दिस इज रियली रियली ऑसम। आर्मी 114 धनुष गन्स बाय 2026 तक लेके आएगी। ये इंडिजीनसली डेवलप्ड है, जैसे कल हम वो फोर्स देख रहे थे स्वीडन, ये जो धनुष है ये इंडिजीनसली डेवलप्ड है, आर्टिलरी है। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी है, डीआरडीओ ने बताया। तो द पॉइंट इज 2026 तक हम जो आर्टिलरी है इसको काफी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिनाका रॉकेट्स, धनुष एटसेट्रा। यूक्रेन वॉर से वर्ल्ड की सारी आर्मीज ने बहुत सारे लेसन सीखे। एक्टिविस्ट, सीईसी एंड ईसीज। देन दिस इज चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर सी। Assam government goes on a record-breaking green drive. This is really good. Shanti Niketan finds its place on UNESCO's World Heritage Site. Fantastic. तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शांति निकेतन ग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अराउंड 1853-54 में। तो शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया जा रहा है। ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, ये अबोर्ड ऑफ पीस है शांति निकेतन। 1901 में ये शेप हुआ था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। सो दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। जय बांग्ला, प्रणाम टू गुरुदेव यहाँ पे बताया गया। देन जो शांति निकेतन है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल वैल्यूज। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको रिस्टोरेशन की बात की थी। फाइनल मीट है G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप फ्रॉम टुडे। चीता प्रोजेक्ट ऑन द राइट पाथ ऑफ सक्सेस है, ऐसा गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया। देन दिस इज फ्लड इन मध्य प्रदेश। स्टडी अब्रॉड विद द ट्रैवल कवर फ्रॉम होम। ये वर्ल्ड न्यूज है। वर्ल्ड न्यूज में EU चीफ प्रॉमिसेस अ प्लान ऑफ एक्शन एज माइग्रेंट्स फ्लॉक टू इटालियन आइलैंड। फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप जाने के लिए यहाँ पे
दिस इज माइग्रेशन होता है जो एट टाइम्स इलीगल माइग्रेशन भी होता है, रिस्की भी होता है, यहाँ पे अक्सर बोट्स कैप्साइज भी हो जाती है, तो ये यूरोप के लिए एक बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है। मिलिट्री लीडर्स है बुर्किना फासो, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, देन दिस इज ब्राजील एंड दिस इज स्पोर्ट्स। कल इंडिया विनर बन गया, दिस इज फैंटास्टिक। ये सारे एशिया कप के चैंपियंस रहे हैं, सो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, फैंटास्टिक। देन दिस इज नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स न्यूज, और ये है कैट्स आर हंटिंग डाउन इंडियाज बर्ड्स, आर वी पेइंग अटेंशन। ये जो कैट्स होती है, डोमेस्टिक कैट्स भी होती है, स्ट्रे जो स्ट्रीट कैट्स एक्सेट्रा भी होती है, ये फीड करती है बर्ड्स पे इनका जो लार्वा, दिस जो सलाइवा भी होता है कैट्स का, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये बर्ड की पॉपुलेशन को ड्विंडल करते हैं, बर्ड्स इंपैक्ट होती है, दे डाई। और ये एट टाइम्स जैसे कैट्स बहुत स्किल्ड होती है, ये हाइट पे भी जंप करके चढ़ सकती है, तो अक्सर जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं हाइटेड एरिया में, वो एग्स या फिर बर्ड्स को किल कर देती है। तो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट बोल रहे हैं उसका बहुत बड़ा रीजन ये कैट्स भी है। तो कैट्स एक्चुअली अटैक एंड किल द बर्ड्स। तो सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मोर्टेलिटी जो है वो बर्ड्स एंड मैमल्स का कैट्स को यहाँ पे ब्लेम किया गया है। तो ये है कैट्स, ओके। देन ये है बिग शॉट, ये स्टोक है, प्रिपेयर टू लीव इट्स नेस्ट फ्रैंकफर्ट में, और दिस इज स्टोक। ये मून क्वैक्स हैं, टेस्टामेंट टू लूनर ऑर्डियल। तो ये मून में ऐसे बहुत सारे एक तो क्रेटर्स है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है और यहाँ पे ऐसे बाहर से ऐसे जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह है वो हिट करते हैं और ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, क्रेटर्स। तो यहाँ अर्थ क्वैक जैसे होता है, अर्थ मतलब अपना प्लैनेट अर्थ का कंपन, दैट इज अर्थ क्वैक। जब मून में कंपन होता है तो उसको मून क्वैक बोलते हैं। सो मून में ऐसे देखा। अब मून में क्वैक्स क्यों होते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे 121 डिग्री हो रहा है से 100 - 33 डिग्री। तो जैसे हमने रॉक का एक्सफोलिएशन देखा था, तो रॉक्स यहाँ पे भी टूटती है, प्लेट्स टूटती है और उससे कंपन चालू होता है। तो मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, डिफॉर्मिटी ज्यादा है, कई बार जो आउटर स्पेस से बॉडी आके मून को हिट करती है तो उससे भी भूकंप एटसेट्रा चीजें आती है। तो द पॉइंट इज, जैसे अर्थ में भूकंप है वैसे ही मून में भी क्वैक्स है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि अपोलो मिशन के कोई लेफ्ट ओवर है, उनके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से भी पॉसिबली यहाँ पे लूनर दिस मून क्वैक पॉसिबल है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। हम डेली ऐसे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, GS2 हो गया है, डेली इन पेपर को अटेम्प्ट करिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सी, यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान है, यूपीएससी को एक्चुअली में पढ़ना और एक्चुअली में पढ़ाना दोनों बहुत मुश्किल काम है, और हमें यही वर्क करना है, बिकॉज सिलेक्शन तो ऐसे ही होता है, बातें कम करना है और एक्शन ज्यादा। आंसर राइटिंग आपको करना चाहिए, ये एक डिस्कशन पेंडिंग था तो इसको देख लेते हैं। 13 सितंबर, जितना आप लिखोगे आपकी हैंडराइटिंग साफ होगी, जल्दी जल्दी आपको लिखना आएगा। साइमा, G27 अभी G21 हो गया है। तो देखो हमने ऐसे तो घंटों घंटों वीडियोस देख लिए, फैंसी फैंसी चीजें देख ली, G20 ऐसा वैसा दिस एंड दैट, पर एग्जाम में आपको फॉर्मल वे में लिख के बताना है, तो लिखना बहुत जरूरी है। G20 देखो आपने बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखो कितना सिस्टमैटिक है, 1 2 3 4 A B, दिस इज कॉल्ड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एवरीवन लर्न फ्रॉम दिस। कंट्रीज, what a wonderful map, very good. Then G21, structure of G20, different tracks and work, this is so beautiful, very good. Issues and limitations, fantastic. India की G20 theme, others, very good. Significance of India G20, fantastic, this is really nice. Tejas, this is so good. G20 का आपने थीम बोला, गुड। मेजर आउटकम्स, देन यहाँ पे आपने डिफरेंट पॉइंट वाइज बताया, गुड। देखो कितने अच्छे से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह भी, ये चीज ज्यादा रिटेन होगा, ज्यादा याद आएगा, याद रहेगी ये चीज, गुड। फाइनेंशियल ट्रैक, क्लाइमेट, सी सच अ कॉम्प्रिहेंसिव, और इससे सवाल आना ही आना है बिकॉज ये बहुत बड़ा इवेंट है। वेरी गुड तेजस। शैलजा का भी देखो कॉपी कितना अच्छा हो गया है, दिस इज वेरी गुड। G20 कंट्री लिस्ट, सी दिस डायग्राम इज सो ब्यूटिफुल, वेरी गुड। देन स्ट्रक्चर ऑफ G20, वेरी नाइस। तो सी, हमें मेहनत करना है, जितनी मेहनत हम करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट। काजल, दिस इज वेरी गुड, देखो कितनी बढ़िया हैंडराइटिंग है। मैप बनाया, G20 सारे स्ट्रक्चर्स, शेरपा, अब देखो दिस स्टाइल, लुक एट दिस स्टाइल, गुड। दिस डायग्राम सिग्निफिकेंट, वेरी नीट एंड क्लीन कॉपी, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, वंडरफुल। देन दीपेश, दिस इज ऑल्सो रियली रियली गुड। दीपेश बहुत सिस्टमेटिकली शॉर्ट नोट्स बनाता है और ये बहुत यूजफुल है रिवीजन पर्पस के लिए, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी नाइस दीपेश।
रत्ना प्रिया भी बहुत अच्छी कॉपी है, दिस इज बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, वेरी नाइस। दिस इज, अब देखो ये कितने अच्छे से कितनी सारी थीम्स बता दी, यही चीज काम आएगी मेंस में, फैंसी चीजें बिल्कुल काम नहीं आती है। वेरी गुड रत्ना प्रिया, की हाईलाइट्स गुड। देन नंदिनी, देखो नंदिनी ने भी कितना अच्छे से लिखा है, एम्स तो सी हेडिंग सब हेडिंग, इससे चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है, मेंबर्स मेजर, वेरी गुड। देन ग्लोबल फ्यूल अलायंस हो गया, कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन, ग्लोबल डाइवर्सिटी, पार्टिसिपेशन एंड सी सो मेनी गुड पॉइंट्स एंड वंडरफुल, वेरी गुड कंटेंट। G20 राम नरेश, दिस इज गुड। G21 हो गया है, सारे कंट्रीज के आपने बताए, डेटा बताया, वेरी नाइस। ट्रॉयका क्या है, देन कंट्रीज, तो सी एक एक्सरसाइज से हमें मल्टीपल कितने सारे बेनिफिट्स हुए, बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे कवर हो गए। कल्चरल शोकेस, दिस इज सो नाइस, वेरी गुड। भारत मंडपम, ब्रोंज, कोनार्क, तंजावर, ब्रास एंड म्यूजिकल हेरिटेज। मंजू, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। की एरिया अप्रोच बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। ट्रॉयका, वेरी गुड। करंट ट्रॉयका, देखो दिस इज हाउ वी शुड स्टडी, जैसे अभी यूनेस्को ने भी बोला, हम इंटरेस्ट डेवलप करें स्टूडेंट्स का, उनको क्रिएटिविटी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे, स्टूडेंट्स खुद ही पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस। समीर, दिस इज गुड। देन बहुत अच्छे से आपने बांग्ला में लिखा, तो लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट अ बैरियर, सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेशन गुड। अब देखो अभी की कॉपी देखो, 2-4 महीने पहले की कॉपी देखो, यू विल सी द डिफरेंस, दिस इज प्रोग्रेस, वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड समीर, बहुत अच्छे से आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा है, गुड। नाउ सी समीर, दिस इज वेरी गुड समीर, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। अब देखो इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, डायग्राम पे थोड़ा ज्यादा और बीच बीच में फ्लो चार्ट बनाए समीर, ओके, दिस इज वेरी गुड समीर। अब हम नेक्स्ट कॉपी में आते हैं, माधव, माधव भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, एंड लुक एट द हार्ड वर्क, दिस इज सो गुड। जितना टाइम स्पेंड करोगे ना लिखने में, उतना ही ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होगी। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, हमें सब पता है, द पॉइंट इज जस्ट टू डू द एक्शन। वसुदेव कुटुंबकम, वेरी नाइस, ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे आपने, फैंटास्टिक। देन सी इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए, वंडरफुल। वेनु इज ऑल्सो वेरी सिंसियर, एंड देखो कॉपी कितना बढ़िया हो गया है, अंडरलाइन किया हुआ है, स्पेसिंग देखो कितना बेहतर हो गया है, दिस इज वेरी गुड वेनु, वेरी गुड। इसको ना रोटेट करके अपलोड करो ताकि पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है। रेखा, अगेन गोल्ड स्टैंडर्ड है आपकी आंसर कॉपी, बहुत अच्छी है। वसुदेव कुटुंबकम, G20 क्या है, लुक एट द स्टाइल, दिस इज सो नाइस, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज रियली रियली गुड, वंडरफुल, दिस इज रियली नाइस। सी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, चेंजिंग ट्रैजेक्टरी, G20 कैसे वर्क करता है, तो हमने ऐसे खुद से लिख के देख लिया, हमारा जॉब तो डन, हमें ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो गया है, दिस इज व्हाट एवरीवन नीड्स टू डू, ओके। बहुत अच्छा लिखते हो आप, इसी को मेंटेन करना है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब देखना धीरे धीरे स्पीड भी आएगी, थोड़े टाइम बाद चीजें सब कनेक्ट होने लग जाती है, हमें इतनी नॉलेज बेस बढ़ता है, हम थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, तो गुड। रफी, दिस इज अगेन वेरी नाइस, बहुत अच्छा डायग्राम है। अब देखो कॉपी कितनी बढ़िया हो रही है, पढ़ना कितना आसान हो गया, स्पेसिंग एक्सेट्रा। ट्रॉय का कंटेंट तो हमेशा ही अच्छा था, गुड, वेरी नाइस। तो प्रेजेंटेशन, कंटेंट, डिसिप्लिन, स्पीड, इन सब चीजों पे हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना है। सो दीज आर द सबमिशंस, एवरीबडी शुड राइट, और उसको शेयर भी करो, देखो शेयर करने से मोटिवेशन आता है, डिसिप्लिन आता है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।